expert lecture based on the smart manufacturing, and then I will share you the one article which is related to this particular topic, and we will have a discussion for 10 minutes for article discussion. On the final day, you are expected to present the findings of the article which are being discussed. Minimum 4 article discussions are being mandatory. Each day one article has to be discussed based on that topic, and on the final day you have to submit a summary of the article to the coordinators. Which will be uploaded. Which will be uploaded to the AICT portal, and all of you are aware that as a participant you will receive the certificate from the AICT login only, means Atal Academy login only, after successfully submitting the feedback. This is one thing. After your marks are being forwarded by the host institute to them, okay, host institute has to conduct the exam. They have to forward the mark sheets to them, upload the mark sheets to them, attendance to them, then submitting the feedback, and also host institute is submitting the finding summary of the article discussion to them, which is given by you people. So after submission of all these things, you will receive certificate in your login. You will be able to download. Okay, otherwise you will not receive the certificate. So try to ensure that feedback is given, everything is being given to the AICT as per the requirement, and 4 formalities has to be completed, then you can able to download the certificate. Okay. Okay, so we will start with the introduction to the smart manufacturing. Dr. Manoj Kumar Daigwani sir has presented with you the what is being coming up in the industry 4.0, and then churning up our curriculum or churning up our system, education system, with respect to the NEP 2020 guidelines. Okay. So why industry 4.0? Better the question, better the solution, better the industry world work. Okay, the day we started that we were not able to manufacture even a needle in our country in 1947. मतलब हमारी ताकत ही नहीं थी कि एक सुई भी हम बना सकते थे 1947 के दरम्यान, जब हमें आज़ादी मिली थी, वहां से हमने स्टार्ट किया था. Okay, still we are under the developing countries. Many developed countries were there. That time they have thought of providing the very polluted environment or the industrial sector to the India. Okay, the overall world. हमें तो पता ही नहीं चला कि जब तक भोपाल गैस दुर्घटना नहीं हुई तब तक हमें पता ही नहीं चला कि यहाँ पे पॉइजनस गैस जो है वो प्रोड्यूस की जाती है. प्लांट जो है वो यूएसए का है, यूनियन कार्बाइड ने दिया हुआ है करके. अब तब वहां से हमें पता चला कि अरे हमारे देश में ऐसे और कौन से प्लांट है. मतलब भिखारियों जैसा देश था, वहां से हमने चालू किया था. कुछ ना कुछ जो मिलता था हमारे थाली में जो आता था वो ले लेते थे. तो यूनियन कार्बाइड, यूएसए, दे हैव ट्राइड टू गिव अस दी एनवायरमेंट, पोल्यूटेड इंडस्ट्री. जैसे कि मैकेनिकल में फोर्जिंग इंडस्ट्री है, पोल्यूटेड इंडस्ट्री है. ओके, लॉट ऑफ पोल्यूशन इज बीइंग क्रिएटेड. आपके एरिया में है, आपके पास में ही है कल्याणी ब्रेक्स, जलगांव. ओके, वो जलगांव, भुसावल के आसपास बहुत सारी फोर्जिंग इंडस्ट्रीज है which creates a lot of pollution. And then we have started off thinking of going toward the era where it is taking up to the better solution, better environment, and the better industries are being coming up under the industry 4.0. Okay, so this just I am taking up to the smart manufacturing. स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है वहां तक लेके जा रहा हूं. ये सबने देखा हुआ है. ओके, कि ये अभी भी कुछ विलेजेस में ये होगा. ओके, जिसको हम बोलेंगे कि मैकेनिकल वेज.
of grinding the wheat powder or grinding the things. ठीक है. सो इसमें लोअर व्हील है, अपर व्हील है. हाथ से बेचारी हाउसवाइफ या लेडी जो है वो पूरा आटा पीसती थी. ठीक है. नो मैकेनाइजेशन वाज देयर, नथिंग वाज देयर. इट वाज एंटायरली द मैनुअल वर्क, okay, with which we have started. Then we have seen that this was the development. सर ने जैसे बताया था इंडस्ट्री 2.0 में वी हैव स्टार्टेड यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी. तो अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज चालू हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहीं ना कहीं से होनी चाहिए थी. इस दिशा में हमने सोचना चालू किया. सो वी हैव स्टार्टेड विद दिस, क्योंकि हमें ऐसा पता चला कि one form of energy can be converted into the another form of energy. Energy can neither be created, energy can neither be destroyed. Okay, this principle was evolved. We came to know to this principle and then we have started कि इसको energy conversion कैसे करेंगे. So hydraulic energy is converted into the mechanical energy by means of the Pelton wheel. Further, it is being coupled with the generator and mechanical energy available at the shaft of the turbine is being converted into the electrical energy. So one form of energy can be converted into the another form of energy. तो हमने हाइड्रोलिक एनर्जी को वाटर एनर्जी को कन्वर्ट किया हमने इसमें मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इंडस्ट्री 2.0 में इसका इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज हमारे पास चालू हो गया. ओके, देन कमिंग टू दिस वन, दिस इज अगेन द फ्लोर मिल. ओके, अब लेडी को, हाउसवाइफ को मैकेनिकल वेज को हमने रिप्लेस कर दिया. रिप्लेस करके हमने क्या किया, इसमें 2 व्हील्स है, उसमें लोअर व्हील्स थे, इसमें अभी हॉरिजॉन्टल शाफ्ट के ऊपर 2 व्हील्स लगाए गए हैं जिसमें से हम लोग जो है व्हीट पाउडर वगैरह प्रोड्यूस करते हैं. एंड नाउ इलेक्ट्रिक मोटर इज बीइंग यूज्ड हियर टू पावर दैट व्हील. ठीक है, अभी ग्राइंडिंग करने के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज चालू किया. ठीक है, अब यहां पर आ गए हैं हम लोग. ठीक है, यहां पे अगर आ गए तो ये अगर हम सोचेंगे कि एक आटा चक्की को अभी ऐसे 10 आटा चक्कियां लगा दिया और हमको मार्केट में मिल रहा है, खाओ खाओ बढ़िया से पतंजलि का आटा खाओ, आशीर्वाद का आटा खाओ, फलाना आटा खाओ, है ना. तो ये जो मास प्रोडक्शन होने लगा वो अब हम जा रहे हैं इंडस्ट्री 3.0 की तरफ से. तो ये जो सैक दिख रही है, 4 सैक्स, सो 4 फ्लोर मिल्स आर देयर, okay, which are coupled together, which are integrated together and the mass production is going on. या फिर फर्टिलाइजर है तो फर्टिलाइजर भी इसी तरह से मास प्रोडक्शन से हम करते जा रहे हैं. नाउ हियर द ऑटोमेशन हैज बीन स्टार्टेड. नाउ दिस इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री 1.0, इंडस्ट्री 2.0, 3.0, इंडस्ट्री 4.0. So started with the 18th century, industry 1.0, then the industry 2.0 beginning of the 20th century, industry 3.0 beginning of the 70th century. ओके, हम लोग अभी भी बोलते हैं कि हम लोग हमेशा डेवलप कंट्रीज से 10 साल पीछे रहते, है ना. जैसे जैसे ट्रम्प बाबा बोल रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, टैरिफ बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे अभी इंडिया का जो है वो इंडिया का मतलब जीडीपी बढ़ेगा या इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि लोग बाहर जाते थे वो वापस कहाँ आते थे, यहाँ से यूएसए चला गया, वो अच्छा ही लगता था, रोड है, बिजली है, फलाना है फलाना है, जोमेटो है, स्विगी है, ऑनलाइन ऑर्डर करो घर पे पहुंच जाता है. ठीक है, तो उस तरह की फैसिलिटीज इंडिया में नहीं हो सकती है. तो जैसे जैसे वो उधर से ट्रम्प का प्रेशर आ रहा है, वीजा की, H1 वीजा की फीस बढ़ गई है, वैसे वैसे लोग इंडिया में रहेंगे और अपना डेवलपमेंट जो है यहाँ पे ज्यादा होगा. तो ये 1970 में जो चालू हुआ था इंडस्ट्री 3.0, ये इट वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1980. ओके, 1980 से 1990 के दशक में चालू हो गया. लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, ही हैज इनिशिएटेड basically the revolution of the IT, revolution of the computers, revolution of the robotics in the India. तो 1970 के दशक में जो चालू हुआ था वो हमारे यहाँ पे जो 10 साल पीछे में, मतलब 1980 के दशक में हमारे यहाँ रोबोट्स आने चालू हो गए थे, हमारे यहाँ कंप्यूटर्स आने चालू हो गए थे. आपके अपने खुद के रीजन के अमरावती के आपको पता भी होंगी वो स्टोरी कि जिसमें जो है वी हैव ट्राइड टू we have requested the America to provide us the facility or provide us the technology of supercomputing.
Okay, America has denied to give us the super computing facility. एक रूम के साइज के जो कंप्यूटर्स होते थे उसका साइज सुपर कंप्यूटिंग की वजह से काफी कम आ गया. एंड देन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया Dr. Vijay Bhatkar from the Amravati, who has initiated and provided the supercomputing facility, supercomputing technology to the India at a very cheaper cost, and we have developed our computing facilities in India only. ठीक है, हमारे लिए हमने अपनी खुद की जो टेक्नोलॉजी बनाई जिसको हम बोलते हैं कि इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डेवलप बाय द इंडियंस, टेक्नोलॉजी डेवलप फॉर द इंडिया, which was made available from the 1980 to the 1990. And then the industrial revolution 3.0 has been started. Now we are talking about the industry 4.0, which is basically the cyber physical system. During 2020-21, during the corona period, again its use has been started. Okay, there are many companies who had a layoff plan during corona period. जैसे कि बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में जिन्होंने सोचा कि जो है वो, क्योंकि कोरोना पीरियड में इंडस्ट्री भी हॉल्ट पे थी, इंडस्ट्री भी चल नहीं रही थी, लेकिन टाटा ने ऐसा नहीं सोचा. रतन जी टाटा ने कुछ अलग सोचा. उनके इंडस्ट्री के प्लांट बंद होते हुए भी क्या हम हमारा प्लांट यहां से घर में बैठे हमारे इंजीनियर ऑपरेट कर सकते हैं क्या? Plant in Tata Motors Pune, okay, located at one place. Engineer is sitting at his own place. Can it be operated from the engineer's place? Can machine be started? Can machine be stopped? Can only one labor, two labor can be employed for the loading of the component, unloading of the component, and then only taking the component finished product to that particular material handling area. It was started, and then industry 4.0 जिसमें साइबर फिजिकल सिस्टम है. ओके, तो उसका इवोल्यूशन हमारे यहाँ चालू हुआ और वो है इंडस्ट्री 4.0. सो टुडे also industry 4.0 revolution is being going on. Okay, this is term which is coined by the Germany people. Industry 1.0 2.0 ये जर्मनी से चालू होती है. आपको पता ही है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी जिसकी हाईएस्ट मानी जाती है या टॉप मोस्ट मानी जाती है वो जर्मन टेक्नोलॉजी मानी जाती है. हम लोग भी अब उसके कॉम्पिटिटर बन गए हैं, लेकिन जर्मनी इज कंसिडर्ड टू बी द टॉप मोस्ट इन द व्हीकल प्रोडक्शन एज वेल एज द टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग. So we have started with the mechanical system, power driven system. Second revolution, we have started with the electrical energy. Third revolution, we have started with the using the electronics gadget, IT product, as well as the computers and the robotics. And in the fourth revolution, now we are using the IoT, the cloud computing, big data analytics, 3D printing, additive manufacturing, and all these things. So that's why the proposal floated by the Dr. V.B. Kolte College of Engineering, which was highly relevant to the area of industrial sector and where the faculty needs a training like a smart manufacturing, like a additive printing, 3D printing, it is being sanctioned so that the faculty members can be trained and they can take up to teach to their student the topics which are being coming up under the NEP 2020, and such type of topics will be there. So this is the development of the phases of the industrial revolution. Then we will see the term that is collective term for technologies and concept of value chain organization based on technological concept. And industry 4.0, okay, as per the Germans, it is being based on the digital revolution, smaller and powerful sensors, machine learning, artificial intelligence, labor and energy cost. So these are basically the things under the industry 4.0. Okay, this was not existence in 2006 iPhone. Everybody uses iPhone now. Okay, but this was not available. Even at that time, I am from the Chandrapur. I have taken a 2-year span of time to get a landline phone at my home. Nobody has imagined that we will have a mobile phone in our pocket. Okay, मोबाइल फोन होगा, कम्युनिकेशन में इतना सारा एडवांसेस हो गया है तो किसी ने इमेजिन नहीं किया था. आज तो रिक्शा वाले के पास भी है, आज तो ऑफिसर के पास भी है, आज तो ऑफिस का काम अगर वो मलकापुर में नहीं भी है, मुंबई में है, तो वो ऑफिस का काम अपने मोबाइल से कर रहा है. So we have not imagined this kind of product, iPad, Kindle,
4G, Uber, Airbnb, Android, and these are now in the existence. So these are all okay. कि सर ने जैसे बताया था कि प्रोडक्ट स्मार्ट होते जा रहे हैं, इंजीनियर स्मार्ट होते जा रहे हैं, हमको भी अभी थोड़ा थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा एनईपी की वजह से या करिकुलम चेंजेस की वजह से। हम अगर स्मार्ट नहीं बनेंगे तो हम वैसे ही रहेंगे। आज की डेट में भी हमें भी अगर मोबाइल फोन यूज करना है तो बहुत बार हम अपने चाइल्ड को पूछते हैं, बच्चे को पूछते हैं, बेटा ये देखो बड़ा क्या होगा, या फिर हमारे पास सब मरीज की या सभी इसकी एक ही दवा होती है ना, सब इंडियंस के पास में एक दवा होती है। मोबाइल को स्विच ऑफ करके फिर से एक बार चालू कर दो तो ठीक हो जाएगा, है ना, कॉमन मेडिसिन फॉर अस, बट वी डोंट नो वेयर द प्रॉब्लम लाइज। बट द न्यू जनरेशन विच इज बीइंग कमिंग अप, दे नो दैट कि वेयर द प्रॉब्लम लाइज, वो मोबाइल बिना स्विच ऑफ किए आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करके दे सकता है। व्हाट डज इट मीन? दैट द प्रोडक्ट्स आर बिकमिंग स्मार्टर, okay, technology is becoming smarter, industries are becoming smarter, and the people, those who are working, or the colleges, those who are creating the engineers for the industry, they also need to become a smarter to provide them the smarter products to the society. Okay, so this was okay 100 million years customers, telephone 75 years, Facebook 4 years, Instagram 2 years, Pokemon to go 1 month, ठीक है। इंडस्ट्री 1.0 से 2.0, 3.0, 4.0 आने तक के 30-30, 40-40, 50-50 साल का समय लगा था। लेकिन सर ने अभी बताया था इंडस्ट्री 5.0 2020 में आया। इंडस्ट्री 5.0 इज लाइक अ रोल मॉडल फॉर अस। ओके, इंडिया में तो अभी है ही नहीं, जर्मनी में उन्होंने चालू किया। ओके, दे आर थिंकिंग दैट दिस इज द आइडियल सिचुएशन। ओके, इंडस्ट्री के लिए ये आइडियल सिचुएशन होगी। अब आइडियल सिचुएशन मतलब कैसा है कि कौन कौन लोग नोबिता और डोरेमन का चैनल देखते हैं, या किसके बच्चे देखते हैं नोबिता और डोरेमन का? आपके देखते हैं, आप देखते हैं या आपके लड़के देखते हैं, है ना? देखते जाइए, नोबिता डोरेमन का चैनल देखते जाइए। लेकिन नोबिता का जो सीरियल है वो अच्छा लगता है बच्चों को, क्योंकि नोबिता वहां पे जो है वो आलसी प्राणी दिखाया गया है, और नोबिता को होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता, माँ ने कुछ बताया काम वो करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसके पास में एक होता है डोरेमन, है ना? डोरेमन मतलब इमेजिनेशन, डोरेमन मतलब द पर्सन हु प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। तो नोबिता एक दिन बोलता है अपना मतलब करते करते कि मुझे बहुत ये हो रहा है चलने के लिए, मुझे है ना एक दूर से दूसरी जगह जाना है। डोरेमन के साथ बोलता है कि वो मुझे जाना है यहाँ से वहां तक, ठीक है, मतलब दूसरे 10 किलोमीटर दूर जाना है। डोरेमन बोलता है हाँ चलो मैं लेके जाता हूँ। नहीं बोलता नोबिता, मैं चलूंगा नहीं। तो फिर कैसे लेके जाना है? हनुमान जी जैसे लेके लाए थे ना पहाड़ उठा के, या राम सीता को लेके बैठे थे ना, वैसे लेके चलो मुझे वहां पे। तो फिर डोरेमन अपने पीछे जो है वो नोबिता को लाद देता है, ओके, विक्रम बेताल जैसे। और बाद में डोरेमन के ऊपर एक गैजेट लगाता है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, ओके, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगा के जो है वो नोबिता को 10 किलोमीटर दूर लेके जाके छोड़ता है वहां पे। What does it shows? That kind of imagination. Okay, in the entire country, we started with the 50 crore population. We started with the 60 crore, 70 crore. Now we are okay ahead of China, the most populated country in the entire world with 150 population. हमारी geographical boundaries जितनी है उतनी है। बड़ा क्या हमको पाकिस्तान ले लिया क्या? नहीं। चाइना ले लिया क्या? नहीं। जापान हमने ले लिया क्या? नहीं। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज आर सेम, ओके, बट वी आर स्टिल एक्सपांडिंग। नाउ वी विल रीच टू द 200 करोड़ पॉपुलेटेड कंट्री। जब हम 200 करोड़ के हो जाएंगे तब हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कौन से रास्ते से चलेंगे? तो वही डोरेमन ने वहां पे बताया कि न्यू मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल कम अप इन द इंडिया, इन द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज नथिंग बट द एयर ट्रांसपोर्टेशन। अभी आपके मलकापुर में कोई एयरपोर्ट नहीं है, कोई आता नहीं है, ठीक है। जलगांव में है एयरपोर्ट, लेकिन एयर फैसिलिटी वहीं पे है। तो सिंगल ऑपरेटेड हेलीकॉप्टर विच इज अ स्मार्ट प्रोडक्ट, है ना। सिंगल ऑपरेटेड हेलीकॉप्टर मतलब जैसे आप साइकिल चलाते हैं उस तरह का
आप अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाएंगे, सिंगल ऑपरेटेड, आप ही उसको नेविगेट करेंगे, आप ही उसको लाएंगे 500 मीटर ऊपर हवा में या मतलब 1000 मीटर ऊपर हवा में, आप ही उसको ड्राइविंग करेंगे, स्टीयरिंग करेंगे, बिल्डिंग के ऊपर के हाइट तक ऊपर चले गए और आपको जहां जाना है, बुल्डाना जाना है, तो आप अपना सिंगल ऑपरेटेड हेलीकॉप्टर लेके बुल्डाना में लेके जाएंगे, उसको नेविगेट करते हुए उतार देंगे, जैसी साइकिल पार्क करते गाड़ी पार्क करते वैसे पार्किंग में पार्क कर देंगे, आपका काम करेंगे, फिर बुल्डाना से उठा के फिर मलकापुर आ जाएंगे। क्योंकि रोड तो है ही नहीं ना, उतनी रोड रहेंगे ना, गडकरी साहब कहां कहां तक रोड बनाएंगे, कितने कितने रोड बनाएंगे, उतनी जगह है, जोग्राफिकल कंडीशंस तो उतनी सेम रहने वाली है, और देश 150 करोड़ से 200 करोड़ हो जाएंगे, है ना, कीड़े मकोड़े जैसे रहने लगेंगे, तो समथिंग हैज टू बी फाइंड आउट, स्मार्टर प्रोडक्ट्स हैज टू बी फाइंड आउट, सो दैट काइंड ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन व्हिच वी कैन कंसीडर एज ए स्मार्ट प्रोडक्ट, सिंगल ऑपरेटेड हेलीकॉप्टर सिस्टम, okay, version from the IIT Mumbai. Dr. Karunakaran is working on that particular area, and we will come to know that कि इस तरह की हमारे यहाँ सिस्टम या स्मार्ट प्रोडक्ट आएंगे। इसका मतलब ये है कि the imagination which was shown in the serial, कार्टून सीरियल डोरेमन, जो गैजेट लगाता है इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट के साथ में हवा में उड़ता है, that is being possible, and try to see that your imagination, your creative thinking, it is also being protected, so that you can develop something which is innovative in nature and which will be useful to the society. Now let us come to the, so this is about the preface of the entire subject, that how we are developing. Now let us see that what is the smart manufacturing, how it work, what are the various components of the smart manufacturing. Over the past several years, the topic of smart manufacturing has been a conversation among the manufacturing expert, strategies, and brought the leader. Okay, despite its recent coverage in the press and in journal article, many in the front lines of the manufacturing aren't quite sure what is manufacturing. So, smart manufacturing, it is the use of real-time data and technology when, where, and the forms that are needed by the people and the machine. What is being needed by the customer, okay, accordingly the products are to be manufactured, okay, and that kind of smartness should be there, okay. Once upon a time our own likings was different, okay, हमारी likings जो है, हमारी जो अपनी इच्छाएं जो है, हमारी मतलब हम इंडियंस की, वो चेंज होते जा रही है ना। पहले अगर 20 साल पहले अगर कोई गाड़ी खरीदता था तो हमारी इच्छा क्या रहती थी, आपके पापा लोगों को देखिए या यहाँ पे जो सीनियर लोग हैं उनको पूछिए, गाड़ी लेते वक्त क्या देखा था, 4 व्हीलर लेना है तो गाड़ी लेते वक्त पहले देखना बेटा उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, ठीक है, पार्ट अगर बदलना है तो पार्ट मिलता है कि नहीं मिलता है इंडिया में, पहली चीज। दूसरी चीज, बेटा हम लोग मलकापुर में रहते हैं तो गाड़ी का सर्विस का शोरूम है कि नहीं, यहाँ पे खराब हो जाती है तो जो है वो मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है। ये दूसरी चीज, बेटा पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जाएंगे तो हमें रनिंग मेंटेनेंस के लिए गाड़ी मतलब अफोर्डेबल रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये इंडियंस की सोच थी, ठीक है। यहां से हमने चालू किया था कि भाई मेंटेनेंस कितना है, गाड़ी चीपर है कि नहीं है, गाड़ी रिपेयर होती कि नहीं है, वहां से हमने चालू किया था। अभी ये मेंटेलिटी से हम बाहर निकल चुके हैं और अभी अगर हमें गाड़ी खरीदना है तो क्या बोलते हैं कि गाड़ी खरीदना मतलब साड़ी खरीदने के जैसा है। एक लेडी अगर साड़ी खरीदने किसी दुकान में जाती है तो उसके सामने अगर 10 साड़ियां निकाल दी जाती है तो वो ये बोलती है कि ये साड़ी अच्छी नहीं है, ये साड़ी अच्छी नहीं है, डिजाइनर साड़ी दिखाओ, सिल्क वाली साड़ी दिखाओ, ये साड़ी दिखाओ, वो साड़ी दिखाओ। 10 साड़ियां देखने के बाद में बोलती है कि ये साड़ी जो है ना वो मेरे पड़ोसन के पास है, ऐसी वाली साड़ी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। साड़ी कैसी चाहिए, हटके चाहिए, सबसे हटके, पूरे मलकापुर में एक ही पीस होना चाहिए साड़ी का, उसका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। उसी तरह का गाड़ी खरीदते वक्त हम ये सोचते हैं कि आवर व्हीकल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। मेरे नेबर के पास तो वही है क्रेटा, मैं क्यों क्रेटा लूं, क्रेटा के ऊपर का वर्जन दिखाओ, ठीक है। i10 है, i10 के ऊपर का दिखाओ,
मारुति की ये गाड़ी है, उसके ऊपर का दिखाओ। मतलब कैसे है कि एस्थेटिक सेंस हैज कम इनटू द पिक्चर। एस्थेटिकली देखते हैं हम, अब मेंटेनेंस के बारे में नहीं सोचते। हाउ गाड़ी लुक्स लाइक। Better product or which is a smarter product. So the smart manufacturing is nothing but the era collaborated manufacturing which is able to solve the existing problem as well as it is going to solve a future problem. Okay, futuristic problem. अभी जो है कुछ लोगों को जिन्होंने अभी थोड़ा सा 40s में आ गए हैं, 50s में आ गए हैं, है ना, जो 40s में आ गए हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं 40s 50s तक आ गए हैं। अरे यार, हमने जो है ना, मैं बहुत सीरियस स्टूडेंट था कॉलेज की ज़माने में, है ना, मैं सिंगिंग, यार बाथरूम सिंगिंग करता था, लेकिन मेरा कभी आवाज़ खुल ही नहीं पाया। अरे यार, मैं अगर मैं स्टेज पे जाके सिंगिंग करता तो 2-4 लड़कियां जो सामने बैठी थी ना, वो शायद पट जाती थी यार। ठीक है ना, मतलब इस तरह का माहौल था मेरे कॉलेज में, लेकिन मैं नहीं कर पाया सिंगिंग। तो उसकी क्या अपेक्षा है? उसकी ये अपेक्षा है कि एक डिवाइस हो, यहाँ पे डिवाइस अगर यहाँ पे लगा दूं मैं, और यहाँ पे मैं अगर सिंगिंग करना चालू कर दूं तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन करके, है ना, वो चाहे किसी का भी, अलका याग्निक का आवाज है, किशोर कुमार का आवाज है, तो आगे वाले को सुनाई जो दे रहा है वो किशोर कुमार की आवाज में दे रहा है। मैं यहां से गा रहा हूं लेकिन किशोर कुमार की आवाज में सुनाई दे रहा है, मतलब उनको लगेगा कि क्या आवाज है, किशोर कुमार की आवाज में गा रहा है। अभी वही कर रहा है वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो वही कर रहा है। आपका भी आवाज रिकॉर्ड करके फोन पे सुनाई देता है, ओटीपी आ गया है, ओटीपी बताइए करके, ठीक है ना, फ्रॉड के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे कि सर ने बताया था कि 2 है, शिक्षक के हाथ में विकल्प 2 होते हैं, या तो वो प्रलय भी ला सकता है या निर्माण भी कर सकता है। उसी तरह से टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। आपके आवाज में कोई आपसे बात करता है, तो उसी तरह का अगर मैं सिंगिंग करने जाऊं, मेरा आवाज भी अच्छा नहीं है, अगर मैं चाहता हूं कि भाई मन्ना डे की आवाज में गाना गाऊं, तो मन्ना डे की आवाज में मेरा गाना आपको सुनाई देगा। सो दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग पॉसिबल, okay, because of the smart manufacturing. Yeah.
So smart manufacturing is predicted as the next industrial revolution. It is smart manufacturing is like a think of your smartphone on a grander scale. अभी पैसे निकालने जाते हैं क्या आप? उनके बैंक में नहीं जाते। मैं यहाँ पे था सुबह, बेटे ने मेरे ड्राइविंग क्लास चालू किया, बोले लर्निंग लाइसेंस की 1500 रुपये फीस मांग रही है, तो भेजो बोला क्यूआर कोड भेजा, स्कैन किया, यहाँ से 1500 रुपये उसको नागपुर में पे कर दिए, हो गया। बैंक जाना पड़ा, 1500 रुपये उसकी माँ को देने पड़े कि भाई उसको लर्निंग लाइसेंस के लिए नहीं देने पड़े। सो डिजिटल ट्रांजैक्शन इज बीन गोइंग ऑन। सो सिमिलरली स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इज लाइक अ smartphone in a bigger scale, grander scale, where you will be able to manufacture the products sitting at the offline. Okay. So smart manufacturing will create an open atmosphere where fact-based decision can be made. Decision makers will have the trusted data when it's needed, where it's needed, and in most useful form. ठीक है। सो इस स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग राइट फ्रॉम द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट मतलब पहले हम सब और प्रोडक्ट की ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करके बाद में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद में प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है, वहां तक के पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट इट इज बीइंग ऑटोमेटेड। ओके, अब आपको अगर गाड़ी की ट्रायल लेना है तो जाने की जरूरत ही नहीं है, वर्चुअल ट्रायल है। ठीक है, गाड़ी की अगर मान लीजिए आप मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो पहले शोरूम में जाके देखते थे ये 15 मॉडल है, ये 20 मॉडल है मर्सिडीज के। अभी जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको मोबाइल फोन में दिखेगा कि इस तरह के मॉडल है। कोटेशन चाहिए आपको, कॉस्ट कितनी है पूछना है, जस्ट मैसेज ड्रॉप कर दिया, आधे घंटे के अंदर आपको कॉल आता है कि हमारी गाड़ी का आपने डाला था, ये कोटेशन है। ओके, फिर बोलते हैं हम नहीं बहुत ज्यादा है, वो तो सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है। आधे घंटे बाद फिर फोन आता है, वो सप्लायर 5000 का डिस्काउंट दे रहा है, हम 10,000 का देते हैं, हम आप जो है हमारे पास आइए। ठीक है, इस तरह का जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था, इस तरह का उसका ऑटोमेशन हो रहा है। और फ्यूचर नीड क्या है ये भी हमें एनालिसिस करना है। फ्यूचर नीड के हिसाब से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। फ्यूचर नीड मतलब ठीक है, आज की डेट में मारुति अल्टो या फिर मारुति 800 व्हीकल्स मैन्युफैक्चर नहीं की जाती है, क्योंकि पीपल जो है, कस्टमर जो है, अलग अलग नेक्स्ट वर्जन तक आगे चले जाते हैं। ठीक है ना, अब हम जैसा सोचते हैं, जैसा करना चाहते हैं, उस तरह का जो है वो होने लगा है, उस तरह के प्रोडक्ट आने लगे हैं। तो जिस तरह का हम चाहते हैं उस डिजायर के हिसाब से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो, यही स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में होता है। ओके, so basically in the smart manufacturing system there are 3 main elements. Okay, one element is computation, another element is communication, and third element is control, है ना। तो ये लोगों को है ना, मतलब बीसी सर और पाटिल सर को टेस्ट भी कंडक्ट करना है, तो ये हमारे से 10 क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, वो 10 क्वेश्चंस के आपको वहां पे आएंगे एआईसीटी की वेबसाइट के ऊपर, आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, क्वेश्चंस इन्होंने ही डाले रहेंगे, लेकिन वो वहां पे आपको टेस्ट लेना पड़ेगा, और वो टेस्ट में आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। वो नहीं करेंगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप सुन लीजिए। ठीक है, जिसके ऊपर जो है साइबर फिजिकल सिस्टम, इट इंटीग्रेट्स बेसिकली द 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। Okay, one is computation, another is communication, and third is control. So cyber physical system is a system of collaborating computational elements controlling physical entities, and these are the cyber physical system. Cyber physical system means there is a human interaction now with the machines. Okay, machines are able to communicate with the human, and human is able to communicate with the machines. मतलब अगर मशीन को अगर हम बोलते हैं, वॉइस कमांड देते हैं कि प्रोडक्शन स्टॉप करना है, तो मशीन कैन स्टॉप द प्रोडक्शन। दिस काइंड ऑफ मशीन्स आर बीइंग कमिंग। ठीक है, पहले की मशीन्स कैसी थी? पहले के मशीन्स में एक्सपीरियंस इंजीनियर चाहिए था। आपके पास में जलगांव में कल्याणी ब्रेक्स है, कल्याणी ब्रेक्स मैन्युफैक्चर दी टैंडम मास्टर सिलेंडर, जो कि ब्रेकिंग अरेंजमेंट में जो लगता है, वो टैंडम मास्टर सिलेंडर का मैन्युफैक्चरिंग एंटायर मारुति का आपके जलगांव में होता है।
मतलब मारुति का प्रोडक्ट मारुति नहीं बनाती है, आपके जो बाबा साहेब कल्याणी का जो प्लांट है, कल्याणी ब्रेक्स लिमिटेड जलगांव में, वो बनाता है। तो वो अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो जाके कंपनी का जो व्हीकल रहेगा उसमें डायरेक्टली फिट होना चाहिए, इस हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें कितनी प्रोडक्ट की डिमांड है, कितनी क्या है, हमारे कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग कितना हो गया, जैसे कि अकाउंट में पैसे कितने जमा हो गए मैसेज आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं तो कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग आज का प्रोडक्शन कितना हो गया है, दैट ऑल्सो यू विल बी एबल टू सी ऑन योर मोबाइल फोन। सो दैट इज नथिंग बट द साइबर फिजिकल सिस्टम। लेट अस सी द वीडियो ऑफ द साइबर फिजिकल सिस्टम। वहां कोई है क्या सर प्ले करने वाला? हाँ, त्या पेनड्राईव्ह मध्ये आहे ना, पेनड्राईव्ह मध्ये 1 नंबरचा व्हिडिओ आहे। 1 नंबर का? हाँ, ठीक है। पेनड्राईव्ह मध्ये जाऊन त्याच फोल्डर मध्ये, हा 1 नाही, पेनड्राईव्ह मध्ये जा, बॅक जाल, नाही हाय नाही, क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक नाही, अटल डॉक्स मध्ये जाल। हा, अटल डॉक मध्ये आहे का ते? नाहीये, नाहीये, बाहेर बाहेर या, बाहेर या। पीपीटी ऍडव्हान्स ऑटो इंजिन, पीपीटी ऍडव्हान्स ऑटो इंजिन, पीपीटी फोल्डर, हा हा, याच्यामध्ये बघा 1 खाली आहे, सगळ्यात खाली आहे 1 हा, हो, आवाज येईल नाही याला? Integrations of computation, networking, and physical processes, where digital components control and interact with real-world systems in real time. These systems bridge the gap between the physical and digital worlds, enabling automation, monitoring, and decision-making across various industries. One major application of CPS is in smart grids, where sensors and AI algorithms optimize electricity distribution. For example, a smart grid can detect power surges and automatically reroute electricity, reducing blackouts and improving energy efficiency. In autonomous vehicles, CPS plays a crucial role by processing data from cameras, radar, and LiDAR sensors. The vehicle's onboard computer continuously analyzes its surroundings, making split-second decisions to ensure safe navigation. Industrial automation also benefits from CPS, where robotic arms and manufacturing plants adjust operations in real time based on sensor feedback. This improves efficiency, minimizes downtime, and enhances precision in production. In healthcare, CPS enables remote surgery using robotic-assisted systems, allowing doctors to perform complex procedures with greater accuracy, even from miles away. By integrating computing power with real-world processes, cyber-physical systems are driving innovations in transportation, energy, healthcare, and manufacturing, making industries smarter, safer, and more efficient. Cyber-physical systems. Cyber-physical systems, CPS, are integrations of computation, networking, and physical processes with digital. ठीक है? So now you have seen that how the cyber-physical systems are being evolving. It's a basically real-time analysis, real-time data, okay, and providing the smarter products, manufacturing the smarter product. So there is a human intervention, or we can say that human interface with the machine. ठीक है? तो मैं ये बता रहा था कि पहले की सर काफी सीनियर है, सर के समय में जो इंडस्ट्री थी, उस समय की इंडस्ट्री में वी वांटेड टू हैव ए एक्सपीरियंस इंजीनियर। ओके, क्यों एक्सपीरियंस इंजीनियर था? लगता था एक मशीन है, मशीन में अगर फॉल्ट आ गया तो मशीन में क्या फॉल्ट है ये जानने के लिए हमें एक्सपीरियंस इंजीनियर की जरूरत थी, है ना। 2 करोड़ 10 करोड़ की मशीन अगर फॉल्ट में रहती है, आइडल कंडीशन में रहती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, इट इज अ लॉस टू द कंपनी। Company wants that machine is used for 24 hours a day, 365 days in a year. There should not be any breakdown of the machine. तो ब्रेकडाउन अगर हो गया तो हमें पता करना पड़ता था, पहले फॉल्ट डायग्नोसिस होता था कि फॉल्ट डायग्नोसिस करते थे, तो फॉल्ट डायग्नोसिस करके जो है वो एक्सपीरियंस इंजीनियर बताता था कि ये शाफ्ट में, ये बेयरिंग में प्रॉब्लम है, तो हमें बेयरिंग रिप्लेस करनी पड़ेगी, और मशीन का मेंटेनेंस होता था और करते थे।
अभी मशीन का मेंटेनेंस इस तरह का होता है कि नहीं, मशीन हैव बिकम स्मार्टर। मशीन स्मार्टर हो गए मतलब डॉक्टर के जैसे बन गए अभी मशीन्स। डॉक्टर के जैसे मतलब पहले डॉक्टर के पास अगर जाते थे तो डॉक्टर 10 क्वेश्चन पूछता था। हा, काय झालं तुम्हाला? मग सांगितलं हे झालं, मग केव्हापासनं हे तुमचं दुखणं आहे? मग ती पण पेशंट सांगत होती की ते वराड निगलला लंडनला मध्ये जोक होता ना, यमीचं लग्न होतं ते झालं होतं ना, तेव्हापासून माझ्या पोटामध्ये दुखत आहे. आता यमीचं लग्न केव्हा झालं त्या डॉक्टरला काय माहिती, पण तो इमॅजिन करायचा यमी म्हणजे कोण, हिची मुलगी. अच्छा, यमीचं लग्न झालं, या बाईचं वय एवढं आहे, मग आता एवढं वय आहे तर बाईचं वय, मुलीचं वय एवढं असावं, म्हणजे हिचं 10 वर्षापासून पोटात दुखणं आहे. आता ती माझ्याकडे आलेली आहे. आता आता नाही, डॉक्टरकडे गेल्यानंतर पहिल्यांदा जो एक्सरे रिपोर्ट आणला काय, नाही काढून घ्या. सोनोग्राफी रिपोर्ट आणला काय, नाही काढून घ्या. ठीक आहे, MRI आणलाय काय, नाही काढून घ्या. मग MRI मध्ये माहिती पडत नाही, आपण सिटी स्कॅन करून टाकू ना. सिटी स्कॅन केलं की माहिती पडेल. डॉक्टर, एक्सपिरियन्स डॉक्टरची गरज राहिली का, नाही राहिला. मशीन्स आर टेलिंग अस व्हॉट इज फॉल्ट इन अवर बॉडी. सिमिलरली द मशीन्स मध्ये जर ब्रेकडाऊन झालं तर स्मार्टर मशीन मध्ये मशीनच स्वतः सांगते, डिस्प्ले करते स्क्रीनवर की या ह्याच्यामध्ये जे आहे या बेरिंग मध्ये प्रॉब्लेम आहे म्हणून प्रोडक्शन बंद झालेलं आहे. सो मशीन्स हॅव बिकम इंटेलिजंट. Export system, artificial intelligence has been fused into the smart machine for smart manufacturing where machines are able to tell. तसंच आता आपण गाडी नेली है ना ऑटोमोबाईल इंजिनियर कडे, तर ते मग आपण म्हणत होतो, अरे तुझा तो जुना मेकॅनिक नाही दिसत का बरं, काय झालं सर? मी करतो ना. नाही नाही यार, तू नवीन वाटत आहे मला. तो जुना मेकॅनिक आहे ना, गाडीच्या आवाजावरनच सांगत होता की गाडीमध्ये काय फॉल्ट आहे. आणि गाडी जर चालू नसल होत तरी सांगत होता स्पार्क प्लग मध्ये काही चढलेलं आहे, कार्बन आहे का, किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइस मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे का, कार्बोरेटर मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का, असं सांगत होता. आता आता नाही पाहिजे. गाडीला पण झालेलं आहे डायग्नोस्टिक सिस्टम आलेले आहे. जसं स्टेथोस्कोप लावतो ना तो डॉक्टर, सोनोग्राफी करतो, तसं गाडीचं इंजिन कंट्रोल युनिट इज कनेक्टेड टू द वन डिव्हाइस 4 व्हीलर मध्ये, आणि त्या स्क्रीनवरच दिसतं सर तुमच्या गाडीमध्ये आहे ना ओव्हर हीट होत आहे. तो आपला जो एअर कंडिशनरचा जो फॅन आहे ना, त्याचा फॅनचा बेल्ट सर वॉर्नआउट झालेला आहे. गाडीच सांगत आहे त्याच्यामध्ये वॉर्नआउट झालेला आहे. आपण तो बेल्ट बदलवला की तुमचा फॅन ऑपरेट होईल. फॅन ऑपरेट झाला तर इंजिनवर लोड नाही येणार, इंजिन हीट नाही होणार आणि बरोबर चालेल. तर गाडीचा जो सिक्वेन्स आहे, जो डिस्टर्ब व्हायचा किंवा प्रॉबेबल फॉल्ट नुसार प्रॉबेबल रेमेडी काय आहे, हे गाडी सुद्धा इलेक्ट्रॉनिक्स डायग्नोस्टिक सिस्टम आलेले आहे. जसं डॉक्टर MRI करतो, डॉक्टर सिटी स्कॅन करतो, तसं गाडीचं स्कॅनिंग होतं इंजिन कंट्रोल युनिटद्वारे. ठीक आहे, विच मीन्स दॅट द मशीन्स हॅव बिकम स्मार्टर. ठीक आहे, वी आर मोर बेस्ड ऑन द टेक्नॉलॉजी. पहिल्याच्या काळी म्हणजे 30-40 वर्षाच्या अगोदर जे आहे तर बेस्ट गायनेकॉलॉजिस्टला सगळ्यात व्हॅल्यू होती है ना. गायनेकॉलॉजिस्टला सगळ्यात जास्त डिमांड होती आपल्या हॉस्पिटलमध्ये किंवा डॉक्टर्सला. आणि गायनेकॉलॉजिस्ट एकदम एक्सपिरियन्स लागायची, ती तिच्या एक्सपिरियन्सवरून सांगायची की काय आहे ते है ना. आता पोटातलं बाळ जर सुद्धा चेक केलं तरी ते मशीनच सांगते. पहिले तीच सांगायची की मुलगा होणार आहे की मुलगी होणार आहे, इथपासनं ते सुरू झालं होतं. तर वी आर मुव्हिंग टुवर्ड्स दी टेक्नॉलॉजिकल अपग्रेडेशन basically, and this technological upgradation is bringing up the smart manufacturing, smarter product in our industry. त्याच्यामुळे ओके, सो नाही ही स्लाइड नाही आहे आपली. हा, स्लाइडवर घेऊन जा. त्याच फोल्डरमध्ये घेऊन जा. हा, इथे हा स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग आहे ना. हो, खालची पीपीटी वर. हो, पीपीटी बरोबर आहे. ठीक आहे, तिथेच घेऊन जा ना. बॅक टू पवेलियन.
ओढून घे खाली, ओढून घे, ओढून घे, ओढून घे, ओढून घे, पुन्हा जाऊ दे, पुन्हा जाऊ दे, पुन्हा जाऊ दे. ठीक आहे, ठीक आहे, ते नाही प्रिव्हियस, ठीक आहे, ठीक आहे. त्याच्या आधी, त्याच्या आधी, त्याच्या आधी, त्याच्या आधी. ठीक आहे, हां, ठीक आहे. So we have seen this kind of cyber physical system which is being evolving, and human interface with the machine, machine interface with the human is being possible. Okay. Now let us see the today's manufacturing industry. Today's manufacturing industry, if you visit any industry, okay, Bhise sir and Patil sir is going to take you to the industrial visit. In this Atal FDP, always mandatorily one visit is there, industrial visit is there, okay, जिसका वीडियो 5 मिनट का 3 मिनट का उसी दिन वो अपलोड करना पड़ता है AICT को. ठीक है, तो आप सभी लोग इंडस्ट्रियल विजिट में रहिए, आपके फोटो दिखने चाहिए वहाँ पे. वो लोग मॉनिटर करते रहते हैं कि कौन अटेंड कर रहा है, कौन अटेंड नहीं कर रहा है. तो वीडियो जिस दिन इंडस्ट्रियल विजिट रहेंगे उस दिन वो वीडियो मांगेंगे कि शाम तक हमें वीडियो भेजिए करके, 2 मिनट का 3 मिनट का. ठीक है. सो टुडेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज अ रिजिडली सीक्वेंस मीन्स वर्क स्टेशंस आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर. वर्क स्टेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, okay, thousands of workstations are there. There is a mass production line in any kind of industry. आप मारुति की ले ले, आप हुंडई की ले ले, आप होंडा की ले ले, सभी जगह जो है मैन्युफैक्चरिंग लाइन एक होती है ना. और वो मैन्युफैक्चरिंग लाइन के ऊपर जो उसके जितने प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पकड़ेंगे तो हुंडई के कितने प्रोडक्ट्स है, क्रेटा में मतलब अलग अलग मॉडल्स है. क्रेटा के भी 4-5 प्रकार के मॉडल है. ओके, वर्ना के 4-5 प्रकार के मॉडल है. फिर बाद में i10 के 4-5 प्रकार के मॉडल है. तो वो सैंट्रो बंद हो गई, अभी सैंट्रो के भी आते थे. तो ऐसे हजारों मॉडल वो मैन्युफैक्चर करते हैं. और हमारा जो कंसेप्ट है फिर से वो चेंज हो गया. हमारा कंसेप्ट क्या है, बाजू वाले के गाड़ी से मेरी गाड़ी अलग दिखना चाहिए, बाजू वाले के फोन से मेरा फोन अच्छा होना चाहिए. ठीक आहे. तिन्ही जर समजा 20,000चा फोन घेतला असाल तर तुम्ही 22,000चा फोन दाखवा बरं, त्याच्यात जास्त फीचर्स असलेला iPro 16 दाखवा. iPro 15 तर माझ्या बाजूवाल्याकडेच आहे. iPro 16 पाहिजे मला, iPro 17 पाहिजे, iPro 18 पाहिजे, है ना. कुठे कुठे ते iPro 1 पासून सुरू केलं ना iPro 16 पर्यंत आता पोहोचलेलो आपण. तर वी आर इमॅजिनिंग, वी आर ट्राइंग टू सी दॅट ऍडिशनल फ्युचर शुड बी अवेलेबल इन द प्रोडक्ट. वेन ऍडिशनल फ्युचर शुड बी अवेलेबल इन द प्रोडक्ट अगर बघायचं आहे तर त्याच्यासाठी मॅन्युफॅक्चरिंग लाईन पण लवकर चेंज करणं आवश्यक आहे. डिझाईन चेंजेस आर रिक्वायर्ड. ठीक आहे. आपण एक प्रोडक्ट बघितल्यानंतर जे आहे ते आपण लगेच आपण काय करतो की दुसरं प्रोडक्ट दाखवा आम्हाला. आपल्याला हे नाही पाहिजे प्रोडक्ट, 6 महिने वापरतो मोबाईल, दुसरा मोबाईल पाहिजे असतो आपल्याला. मीन्स डिझाईन चेंजेस आर फ्रिक्वेंटली चेंज. ओके, अँड विथ रिस्पेक्ट टू डिझाईन चेंजेस, now the manufacturing line also it has to become a smarter, it has to become a flexible, fully flexible. या केस मध्ये टुमॉरोज मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री, स्मार्ट इंडस्ट्री विल बी फुल्ली फ्लेक्झिबल मध्ये ओके. एखाद्या प्रोडक्टला वर्क स्टेशन नंबर ए वरनं वर्क स्टेशन नंबर एच वर पाठवायचा आहे, इट इज पॉसिबल. फ्रॉम वर्क स्टेशन नंबर ए डायरेक्टली प्रोडक्ट कॅन गो टू द वर्क स्टेशन नंबर एच. Workstation number H to workstation number K, it can directly go. It is a fully flexible manufacturing system is there, and which is considered to be the tomorrow's manufacturing system, which is a smart product, smart manufacturing. म्हणजे तुम्हाला जर पाहिजे आहे ओके वेगळं डिझाईन, तो म्हणतो वेगळं डिझाईन तुम्हाला तयार करून देईल, अँड दॅट इज बिंग पॉसिबल. सो दिस इज दी टुमॉरोज मॅन्युफॅक्चरिंग लाईन. ओके, सो व्हॉट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री 4.0? अगेन this is an important slide as far as your MCQ is concerned. Okay, what are the important components of the industry 4.0? It is a user interface. Okay, मशीनच्या इंटरफेस वरनच प्रोडक्शन किती झालं, प्रोडक्शन का बरं कमी झालं, प्रोडक्शन का बरं जास्त झालं, मशीनचं फेल्युअर झालं असेल तर मशीनचं फेल्युअर का बरं झालं, काय झालं, एव्हरीथिंग इज बिंग विजिबल टू यू.
Okay, Industry 4.0 concept will be utilizing the non-renewable energy sources. आता करंटली आपण थर्मल एनर्जी यूज करतो, हायड्रोलिक एनर्जी यूज करतो, पण आपण सोलार एनर्जीचा यूज म्हणजे वाढेल आणि आपल्याकडे विंड एनर्जीचा यूज वाढेल. सो इट विल बी यूज ऑफ रिन्युएबल एनर्जी. ठीक आहे. देन द बिग डेटा इज दॅट, ऑटोमेशन इज दॅट. Okay, automation, that is entirely production line is managed by the robots, managed by the flexible manufacturing system, managed by the computers, managed by the direct numerical control. हे सगळं काही जे आहे ना ते त्याच्यामध्ये होईल. And then the big data will be there. Okay, big data, cloud computing, these are the concepts which will be used in case of the smart industry, or which will be used in case of the industry 4.0. So let us see now how the industry 4.0 and the smart manufacturing is being working. Video दाखवशील रे बेटा? हॅलो, व्हिडिओ दाखव. व्हिडिओ परत त्याच्यात जावं लागेल, ते डायरेक्ट क्लिक नाही होत. त्याच फोल्डरमध्ये जायचं. 2 नंबरचा व्हिडिओ आहे, 2 नंबरचा. ते फोल्डर नको चेंज करू बेटा. ते काय 2 नंबरवर आहे ना, ते 2 नंबर म्हणजे इंडस्ट्री 4.0 लिहिलेलं आहे ना, तिथेच फोल्डर चेंज करू नको नको नको. हा, येस. Manufacturing. Products find their way independently through the production process. In intelligent factories, machines and products communicate with each other, cooperatively driving production. Raw materials and machines are interconnected within an Internet of Things. The objective, highly flexible, individualized, and resource-friendly mass production. That is the vision for the 4th Industrial Revolution. A look back at history. At the end of the 18th century, the first steam engines and the intelligent use of hydropower revolutionized production. The late 19th century saw the rise of electrical engineering and mass production. The first moving belt conveyor was used as long ago as 1870 in the slaughterhouses of Cincinnati, Ohio. In the mid-1970s, electronics and IT began to expand rapidly into industry. Siemens developed the first Sonata. Production became increasingly based on computer-assisted controls. The 4th Industrial Revolution is still a vision. Experts believe that it will only become a reality within the next 20 years. In intelligent factories, everything is interconnected wirelessly. At the German Research Center for Artificial Intelligence in Kaiserslautern, this future can already be experienced right now. Research is underway here to exactly what the industrial production of tomorrow will be like. Roboterwagen zukünftig aus Bausteinen bestehen, aus smarten oder intelligenten Bausteinen, die man bisher mal vergleichen, weil das vielleicht noch so ein bisschen mit einer Lego-Steine. Das heißt, wir haben standardisierte Bausteine, die wir hoffentlich relativ einfach zusammenstecken und zusammensetzen können. Jeder dieser Bausteine hat bestimmte Funktionalitäten. Und wir können sie zukünftig in einem solchen fabrikinternen Internet dann kombinieren. A bottling plant for liquids set up together with Siemens is used to demonstrate the most important components of the intelligent factory of the future. Each bottle contains an RFID chip storing a precise description of how it has to be processed. Which liquid? Which lid? And which weight? At each station, the bottle communicates directly with the machine, telling it how it has to be processed. At the end, a computer checks whether the bottle has actually been produced as desired. Factories with networked machines and products are already in existence today. In the future, however, these hitherto self-contained systems will be connected together in a comprehensive network. All devices, machines, and materials will be duly equipped with sensors and communications technology and connect to each other. These systems are known as cyber-physical systems. The highlight is that they communicate with each other and also control each other cooperatively.
Wenn Sie sich das in der Industrie 4.0 angucken, dann basieren Sie ja auf dieser Cyber Physical Systems. Das heißt, Sie haben Autokraten selbst arbeitende Systeme, die sich optimieren und sich gegenseitig austauschen. Und dadurch letzten Endes Produktion optimieren. Ja, die Visionen sind so aus, dass wir ein Internet quasi hinunterziehen bis auf die unterste Ebene. Das heißt, jeder Sensor, jeder Aktor, der damit quasi einen Teilnehmer eines Internet der Dinge ist, dieses Gerät hat damit eine eigene IP-Adresse, ist damit adressierbar in diesem Netzwerk. For the customers, this means tailor-made products at relatively affordable prices. For industry, it means highly flexible mass production that can be rapidly adapted to market changes. Because in the future, product life cycles will be even shorter. Another reason why it's increasingly important to depict engineering across the entire life cycle. Maintenance, for instance, is planned in from the very start. Wir haben ja bereits in den 90er Jahren mit Totally Differential Automation entsprechend ein Setup gewählt, wo unsere Produkte und Systeme sehr gut miteinander kommen. ठीक आहे, परत त्यावर ना स्लाइड खाली स्लाइड आहे खाली. हां, ठीक. So we have seen that fully flexible manufacturing system wherein the real-time design changes in the product can be incorporated by the manufacturing line. As per the design requirement, the products can be moved from one workstation to the another workstation, maybe from the first workstation to the final workstation in the real time. Okay, so that kind of manufacturing systems are being coming up. So these are the Industry 4.0 concepts. Okay, these are the T6 design principles. What we see that interoperability, virtualization, decentralization, real-time capability, service orientation, modularity. So these are the building blocks of the smart manufacturing. Okay, so building block like autonomous robot, big data analytics, simulation, horizontal and vertical system integration, Internet of Things, industrial Internet of Things, IIoT, cyber security, additive manufacturing, augmented reality, and the smart manufacturing. So these are the basic building blocks of a smart manufacturing where we are working now, and Industry 4.0 and tomorrow's industry which will be available in the India, in our region, it will be a smart industry working on these technologies. Okay. So there is an impact on the value chain in all kind of value chain, digital enterprise. Okay. As an example, just I am showing you that in 1980 we have touched the topic of robotics and the computer's evolution. Now we have also discussed about the single operated helicopter or the air transportation method which will be used for the single person. Similarly, the robots which is being used in the Amazon warehouses for handling of the material from the warehouses, it is being increasing. Till 2016 there are many more robots which are being used, and these are the products, smart product. And finally I will tell you the smart product which is developed by us only as a part of the research work, which are going to come up in India and very soon. And that time you will hate Dr. Avari that why he has developed such type of product which is innovative for but which is harmful to us. Okay, so ये पहले स्मार्ट प्रोडक्ट मैं बता देता हूँ, है ना, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के स्मार्ट प्रोडक्ट, एंड फिर फाइनली जो प्रोडक्ट हम ला रहे हैं वो बता देता हूँ. Philips lighting, wherein user can control Philips lighting through the smartphone. Okay, through your smartphone you can control your illumination, you can control your light. ठीक है, हमारे देश में कैसा है
कि दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है। दो तरह की टेक्नोलॉजी मतलब हम घर में लाइट यूज करते हैं तो पढ़ाई के लिए या बेडरूम में या कहीं पे जो लाइट होता है वो 60 वैट का बल्ब यूज करते हैं। अभी CFL आ गए, थोड़ा 20 वैट 30 वैट में भी काम चल जाता है। और पहले जो होता था हमारा कंसेप्ट वो 0 वैट का था, 0 वैट बल्ब। अब 0 वैट बल्ब मतलब क्या? 0 वैट के आपके पेरेंट्स को पूछो 0 वैट का बोलते थे, अरे बेटा बेडरूम में 0 वैट का बल्ब लगाना जरूरी है रात में सोते वक्त। 0 वैट का मतलब क्या है? MSCB का 0 वैट अगर है तो प्रकाश कैसे दे रहा है? 0 वैट का बल्ब मतलब MSCB का जो मीटर आता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर, उसका 15 वैट के नीचे का अगर बल्ब रहा तो वो रोटेट होता था क्या? नहीं होता था। ऐसी डिस्क रोटेट होती थी क्या? नहीं होती थी। डिस्क वो एल्यूमिनियम की रोटेट नहीं होगी तो एनर्जी कंजम्पशन होगा क्या? बिल होगा क्या? नहीं होगा, बिल नहीं आएगा। तो बोलते थे कि 0 वैट का बल्ब लाना। हम मार्केट में जाके बोलते थे बेटा 0 वैट का बल्ब देना, तो 0 वैट का बल्ब हम लाते थे, मतलब वो 15 वैट का रहता था। और 0 वैट का इसलिए बोलते थे कि उसकी डिस्क, उसमें कैपेसिटी नहीं है वो एल्यूमिनियम की डिस्क घुमाने की, है ना, इसलिए हमको इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आता था, है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी का मीटर भी क्या हो गया? स्मार्टर हो गया। वो 1 वैट का CFL भी लगाओगे बेडरूम में, वॉशरूम में, तो वो काउंट कर लेता है ना, बिल आता है। तो इस केस में ये प्रोडक्ट में आपको 2 लाइट लेने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइट से काम चलेगा, है ना। आपको जब पढ़ाई करना है 60 वैट चाहिए, 60 वैट कर लीजिए। रात में सोना है तो मोबाइल फोन से ही आप अपने जो वैटेज है उसका 2 वैट कर दीजिए, आपको डार्कनेस जैसे लगेगा। और सेम बल्ब controlled by your smartphone is solving the purpose of 2 bulbs. Okay, one during study time it is giving a wattage of 60 watt, and during night time it is giving a illumination of 2 watt. So no need of the 2 bulbs. So that kind of smarter products are there. Okay, it is being coming up, it is being already there. Then Medatronic implanted digital blood glucose meter connect wirelessly to a monitor and display device and can alert patient to trend in glucose levels in requiring attention. This is a particularly the Medatronic device. Okay, with that device, okay, the patient's data can be monitored at offline end. Okay, no need to visit the hospital. जैसे कि किसी की बाईपास सर्जरी हो गई है, अब बाईपास सर्जरी हो गया है, आजकल तो लोग मिलने भी नहीं जाते कोई, है ना, डॉक्टर भी मना करते हैं, है ना, इतना ICU में है, ये है, इन्फेक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसका ऑपरेशन हो गया है ना। उसके घर वाले भी बोलते हैं आइए मत, क्योंकि घर में 10 गेस्ट आएंगे तो खाना बनाना है ना, उसकी पेशेंट की केयर लेंगे कि वो 10 लोगों के लिए खाना बनाएंगे, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसीलिए क्या है कि इन दिस स्मार्ट डिवाइस, द स्मार्ट प्रोडक्ट, ओके, द पेशेंट इज एट हॉस्पिटल ओनली, यू नो द डेटा ऑफ द पेशेंट, उसका हार्ट बीट कितना है, उसका लेवल कितना है, यह आपके मोबाइल फोन में पता चलेगा। डॉक्टर विजिट पे आए थे तो डॉक्टर ने क्या ओपिनियन दिया है, ओके, कितने दिन में रिकवर हो जाएगा, ये भी आपको मोबाइल में दिखाई देगा इस प्रोडक्ट की वजह से। ठीक है, ये प्रोडक्ट को हमने भी खुद ने डेवलप किया है। हमारे जो बुक्स लिखे हुए हैं, 3D प्रिंटिंग का जो बुक लिखा है CRC प्रेस के लिए, उसमें आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग कोरोना टाइम, ओके, व्हेन दिस बुक वाज रिटन बाय अस, व्हेन आई वाज आल्सो एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड फॉर 12 days आई वाज इन द ICU, एंड फॉर ड्यूरिंग सेकंड कोरोना टाइम, सेकंड फेज, ओके, हम लोगों को क्या है कि गवर्नमेंट सर्वेंट है तो सारे हॉस्पिटल का ऑक्सीजन का ऑडिट, है ना, आपको पता होगा, DT की तरफ से हमने किया था। लोगों को कोरोना हो गया था, हम लोग एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर है हम लोग, तो हम लोग ऑक्सीजन का ऑडिट हॉस्पिटल करने गए थे। ठीक है ना, जो हॉस्पिटल के जो डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद में एम्बुलेंस में लेके जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती थी
हर्ष फैन नहीं मिलता था, इतनी अपने देश की हालत खराब थी। तो सारे नगर परिषदों ने एम्बुलेंस खरीद ली। एम्बुलेंस खरीदने के बाद में एम्बुलेंस को यूज किया, है ना, एम्बुलेंस को तो यूज किया, ऊपर से वो स्मशान भूमि जाती थी, हॉस्पिटल जाती थी, रोज 200 300 लाशों को लेके जाना पड़ता था, है ना, छोटी सिटी में, बड़े सिटी में। तो एम्बुलेंस का ऑडिट हम करते हैं एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो वो एम्बुलेंस भी जो है वो यूज की गई थी, ऐसी एम्बुलेंस को हमने ऑडिट किया। तो हमको भी कोरोना हो गया। अल्टीमेटली वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट, वी कैन नॉट डिनाई कि हम लोग नहीं जाएंगे करके। ऐसी जो एम्बुलेंस यूज की गई है कोरोना में उसको ऑडिट करने, है ना, एम्बुलेंस को बिना टच किए ऑडिट नहीं कर सकते। एम्बुलेंस के नीचे घुसे एम्बुलेंस को ऑडिट नहीं हो सकता है, अंदर जाके देखने से भी उसका ऑडिट तभी हो सकता है। और ऑपरेशन थिएटर्स थे हॉस्पिटल में, जगह जगह एयर कंडीशनर्स लगाए गए, कुछ इक्विपमेंट्स लगाए गए। उस दरमियान जो है हॉस्पिटल्स को इक्विप किया गया। तो वो कोरोना के हॉस्पिटल्स का ऑक्सीजन ऑडिट अलग बात है, दूसरा वो इक्विपमेंट्स को ऑडिट करना पड़ता है, रियली वो खरीदे गए हैं नहीं है। तो वो सारे नागपुर के ग्रामीण हॉस्पिटल का ऑडिट वो हमने किया था, मैंने खुद किया था। और उसकी वजह से मानिए कि हमारी वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ ड्यूटी है, लेकिन कोरोना हो गया था। हमारे में से 3 लोगों को, 4 लोगों को कोरोना हो गया था। हमारे एक प्रोफेसर जो है उनको 2 बार कोरोना हो गया था, फेज 1 में भी हुआ था, फेज 2 में भी हुआ था। तो जब आईसीयू में एडमिट हुआ था, सो दैट टाइम ओके वी हैव इमेजिन दैट